So last class we are discussing factor analysis, In last class, we have discussed about factor analysis. and you have shown the practical application also in SPSS. Okay. So today we will discuss about things we have planned. Yes. क्या हो जाता है यार network को? Hello. Yes, Am I audible to you all? Yes, sir. We can. Is the screen visible to you all? Yes, sir. I cannot hear your voice properly. There is some disturbance. Okay, let's see and let's hope for better quality of audio and visuals. Fine. So in previous session, we were talking about factor analysis. We have seen what is the use of factor analysis, what kind of data we can put into factor analysis, and how we interpret factor analysis. We have seen how we can form different components, different group of variables which are having higher weightage in terms of responses given by the people, those who are surveyed, right? So factor analysis we have seen through SPSS software. We have understood where it is applicable, what kind of studies we can do with the help of factor analysis. We have also understood what is the practical application of factor analysis. Factor analysis can be used to identify the group of highly affecting variables, highly affecting or highly impactful factors or group of variables on particular phenomenon, particular dependent variable. So like if you have a huge number of factors, you can reduce those factors to a smaller number of variables. You can identify few of them. You can identify few of them which has higher and significant impact over your dependent variable, right? So I hope you could relate what is the use of factor analysis, right? I think now today we have close to 70-80 people joining the session, and in the previous session we had I think 11-12 people, those who have attended this. 30-40 people maximum were there when we discussed about factor analysis. Now I am not sure how much you are going to understand about cluster analysis, but let's see. We will go ahead with whatever we have, right? So if I ask you, how would you explain factor analysis in one sentence? Is there anyone who want to give a chance? What is factor analysis in one sentence?
Any idea? So your voice was breaking. We couldn't understand. I was saying, if I ask you all, what is factor analysis in one sentence? How do you explain factor analysis in one sentence? Can you hear me? Hello? Yes, so we can say factor analysis is a process of reducing the variables into less variables to to interpret the result in a more Right. precise way. Yes, right. So if we are thinking that there is a huge number of variables, there are huge number of variables which has significant impact on particular phenomenon, particular parameter, particular activity, or something happening in the particular phenomenon, right? So factor analysis is a data reduction technique which can be used to reduce the larger number of list of variables to a smaller number of list. अगर आपके पास 50-60 वेरिएबल्स है फॉर एग्जांपल, और 50-60 वेरिएबल्स में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से 4 या 5 वेरिएबल्स हो सकते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पॉपुलेशन के लिए जो सर्वे आपने किया था उस सर्वे के लिए, राइट? अगर ये आइडेंटिफाई करना है तो आप फैक्टर एनालिसिस लगा सकते हो. यस देवांग, यू आर रेजिंग हैंड. Sir, not a question, but sir, we can say that aptitude test is a part of factor analysis during the interview process. Oh, no. See, that is something different. That is screening test, right? That is screening test. Factor analysis is like moreover a psychographic analysis or psychological analysis of opinion given by the respondent, right? And see, how do you understand which are most important variables that respondents are considering by a interview process? Like aptitude test से आपको ये तो नहीं पता चलेगा ना कि कौन से variables important है. Aptitude test से आपको सिर्फ ये पता चलेगा कि कौन से बंदे को कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितना स्कोर आता है, राइट? उससे ये नहीं पता चलता है कि जो 50 क्वेश्चंस है 50 में से मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से, ये थोड़ी पता चलता है आपको, राइट? Yes, sir. तो फैक्टर एनालिसिस में और एप्टीट्यूड टेस्ट में डिफरेंस ये है कि एप्टीट्यूड टेस्ट कैन बी अ क्लासिफिकेशन टेस्ट, कैन बी अ ग्रुपिंग टेस्ट, बट फैक्टर एनालिसिस विल बी अ रैंकिंग टेस्ट. Factor analysis will be a ranking test which ranks few of the variables at the top of the list which has significant impact, higher impact on the dependent variable. So for example, if I say that what are the factors that students consider important while they take admission in MBA, right? अगर मैं इसका कोई टेस्ट लेता हूँ 50 बच्चों का, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन से इंपॉर्टेंट देते हैं? बट मैं अगर उनको ओपिनियन लेता हूँ for 50 variables like placement के important है, या infrastructure important है, या फिर training important है, syllabus important है, university affiliations important है, what is important, industry visit ज़्यादा important है, how would I know that which are the top 5 parameters that students give the importance while they take admission in MBA? That example I was discussing with you in the last session also, right? So it's not a kind of examination or test. It's a kind of ranking of opinion through survey for some specific population, right? किसी population को सर्वे करके उनके ओपिनियन को रैंक करके जो 50 वेरिएबल आप रैंकिंग के लिए ले रहे हो उसमें से टॉप के 5 आइडेंटिफाई करने का एक टेक्निक है फैक्टर एनालिसिस. So you are reducing those 50 variables into top 5 important variables. We have seen what are the methods. Based on eigenvalue we can compute the components, and for factor analysis you need SPSS software. You cannot run it in Excel without downloading few additional tools to Excel sheet also. Excel में भी कर सकते हो. You have to download few additional tools for that, statistical tools, but that is bit difficult. So I have asked you all to install the SPSS trial version. I don't know how many of you have done. If anyone has done it and tried what is factor analysis, you can just raise your hand. Let me know how many of you have done that. Meanwhile, I will keep discussing about cluster analysis now. What did we do
what did we do in our factor analysis? We have reduced the number of variables for which we have collected opinion from respondents to a few most important numbers, right? तो डेटा रिडक्शन टेक्निक हो गया. अब क्लस्टर एनालिसिस क्या है? क्लस्टर एनालिसिस इज अ डेटा क्लासिफिकेशन टेक्निक. क्लस्टर एनालिसिस इज अ डेटा क्लासिफिकेशन टेक्निक. सो क्लासिफिकेशन टेक्निक में क्या करना है? डेटा ग्रुप करना है. उसमें क्या किया? रैंक किया. इसमें क्या कर रहे हैं? डेटा का ग्रुपिंग कर रहे हैं. सो क्लस्टर एनालिसिस इज एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस दैट ट्राइज to identify structures within the data. It tries to identify what are the similar structures. It tries to identify what are the similar structures, combinations of different groups in the similar data. For example, आपने 400 स्टूडेंट से सर्वे किया, 400 स्टूडेंट से सर्वे किया. What is your expectations from MBA institutes? For example, आप समझने का कोशिश करो मैं क्या बोल रहा हूँ. सिंपल हिंदी में समझ रहा हूँ मीनिंग, क्योंकि स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में जाएंगे तो समझाना भी डिफिकल्ट है, समझना तो और डिफिकल्ट है, राइट? क्लस्टर एनालिसिस का मतलब समझो. जैसे फैक्टर एनालिसिस का मतलब ये है कि 50 वेरिएबल जो है, जो एमबीए के लिए स्टूडेंट्स का इंपॉर्टेंस चेक करते हैं या सेटिस्फैक्शन चेक करते हैं, उसमें से टॉप के 5 आइडेंटिफाई करना है, तो फैक्टर एनालिसिस. क्लस्टर एनालिसिस क्या है? फॉर एग्जांपल, यू हैव टूक रिस्पॉन्सेस फ्रॉम 400 एमबीए स्टूडेंट्स. फॉर व्हाट? टू आइडेंटिफाई व्हाट इज देयर परसेप्शन टुवर्ड्स एमबीए कोर्स. आपने क्या किया? 400 लोगों का डेटा लिया सर्वे करके, व्हाट इज देयर परसेप्शन टुवर्ड्स एमबीए कोर्स. अब परसेप्शन क्या हो सकता है? आप परसेप्शन के वेरिएबल्स कौन से दे सकते हो? परसेप्शन के वेरिएबल अगेन लाइक यू गेव इट फॉर द प्रेफरेंस कि एमबीए करना बहुत अच्छा है, एमबीए से अच्छी जॉब मिल जाती है, एमबीए से सैलरी अच्छा मिलता है, एमबीए बेटर कोर्स देन एमकॉम. ऐसे कुछ 50-60 वेरिएबल्स आपने दिया. एमबीए में प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, एमबीए प्लेसमेंट बहुत अच्छा नहीं है, ये सब वेरिएबल्स आपने दिया और 400 लोगों का आपने सर्वे किया. तो क्लस्टर एनालिसिस विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ पीपल, दोज हु आर हैविंग सिमिलर काइंड ऑफ ओपिनियन. अब 400 में से ऐसा हो सकता है कि 400 के 3-4 इंपॉर्टेंट ग्रुप हो सकते हैं. कुछ लोग होते हैं जो प्लेसमेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, प्लेसमेंट्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. कुछ होते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर को इंपॉर्टेंस, कुछ होते हैं सिलेबस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, कुछ होते हैं ज्यादा कल्चरल्स को, हैपनिंग चीजों को, इंडस्ट्री विजिट्स को, टूर्स एंड ट्रैवलिंग को इंपॉर्टेंस देते, राइट? तो दिस 4 कैन बी अ कॉमन. एक लॉजिक लगा के देखो क्या क्या हो सकते हैं 4, क्या क्या हो सकते हैं ग्रुप्स. तो क्लस्टर एनालिसिस विल आइडेंटिफाई एंड विल बी हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड what are those factors in which the grouping of similar characteristics of your respondents data is done, right? तो जो 400 लोग हैं उसको आपको सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, आइडेंटिकल होमोजेनियस डेटा की ग्रुप्स ऑफ डेटा विथ होमोजेनियस कैरेक्टर्स, राइट? ग्रुप्स ऑफ डेटा with homogeneous characters. So cluster analysis is also called as segmentation analysis or taxonomy analysis. See, taxonomy analysis is something which is used in biological research. जो clinical research की term है, there they try to find out the similar results for the tests that have been performed in the biological or chemistry analysis. So taxonomy को थोड़ा scientific reason है. Segmentation analysis, as I was telling you that it helps you to segment. Market segmentation क्या होता है? We divide total market, heterogeneous market into subsets of homogeneous groups. उसको हम segmentation बोलते हैं. Similarly, we consider our population sample data as a heterogeneous, and we divide that data into various segments, those who are having homogeneous similar characteristics. So cluster क्या करेगा? आपको, आपने जो डेटा कलेक्ट किया है, जितने रिस्पॉन्सेस का डेटा कलेक्ट किया है, उसमें से सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के कितने ग्रुप फॉर्म हो सकते हैं और वो ग्रुप कौन से एरिया में जाता है वो बताएगा. क्लस्टर एनालिसिस आपको ये बताएगा टोटल 400 एमबीए स्टूडेंट्स में से कितने मैक्सिमम क्लस्टर्स फॉर्म हो रहे हैं और कितने मैक्सिमम क्लस्टर फॉर्म होने के बाद वो कौन से एरियाज में है. समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर. राइट. सो कितने क्लस्टर्स हो सकते हैं आपके डेटा के, मतलब कितने ग्रुप्स हो सकते हैं जो सिमिलर काइंड ऑफ ओपिनियन रखते हैं या सिमिलर काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है, और उसमें से फिर कितने होने के बाद वो कौन सा पैरामीटर है जिसके लिए उन्होंने अपना ग्रुपिंग फॉर्म किया है. ऐसा कौन सा है? और प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट के लिए उन्होंने ग्रुपिंग किया है.
इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उन्होंने ग्रुपिंग किया है या फिर टीचिंग के लिए उन्होंने ग्रुपिंग किया है, वो भी बताएगा क्लस्टर एनालिसिस आपको। सो क्लस्टर एनालिसिस के 3-4 स्टेजेस है जो आपको स्टेप वाइज करना पड़ेगा, राइट? सो क्लस्टर एनालिसिस is a powerful data mining tool which helps you to identify the similar groups of responses from a huge database. फिर यहीं पे भी एक, यहाँ पे भी एक ये है कंडीशन है कि जब आप डेटा क्लस्टर एनालिसिस में यूज कर रहे हो तो इट शुड बी ए लार्जर डेटा सेट। जैसे मैंने आपको फैक्टर एनालिसिस में बताया था कि 4 या 5 फैक्टर की लिस्ट है तो आप उस पर फैक्टर एनालिसिस नहीं लगा सकते हो, आपको कम से कम 25, 30, 40, 50, 100 वेरिएबल्स चाहिए जिसका आप फैक्टर एनालिसिस करके उसको 5 या 10 वेरिएबल में कन्वर्ट करोगे। 5 है तो उसको कहाँ कन्वर्ट करोगे? वो तो इट मींस दोस 5 आर हैविंग ऑलमोस्ट इक्वल काइंड ऑफ इंपॉर्टेंस इन द फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। सो फैक्टर एनालिसिस में जैसे लार्जर नंबर ऑफ वेरिएबल्स चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए? यहाँ पे लार्जर नंबर ऑफ डेटा सेट चाहिए। मतलब आप 10, 20, 50, 40 सैंपल लेके क्लस्टर एनालिसिस नहीं कर सकते, अब करोगे तो भी उतना एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आएगा। You need a larger data set here. So it's a powerful tool which helps you to mine a data, which बड़े डेटा सेट में से अगर आपको सिमिलर ग्रुपिंग का डेटा निकालना है तो आप क्लस्टर एनालिसिस यूज कर सकते हो, राइट? सो यू जस्ट कैन रीड द टेक्निकल थिंग्स ऑन योर स्क्रीन. So for example, MBA institutes can use cluster analysis to classify students according to the similarities and differences among them. For example, I want to identify, I have collected data in terms of like from where are you, how many people are there in your family, which state you belongs to, which is your graduation background. ये सब चीजें मैंने आपसे कलेक्ट कर लिया और मैंने मेरा एक्सेल शीट मेंटेन कर लिया. So uploading that Excel sheet on SPSS, I can easily identify that who are the people, those who represent South India, North India, East India, जो भी है, West India, Central India, or the people those who are representing in terms of like minorities, religious group को कितना represent करते हैं. I can have a various kind of groupings using factor analysis among my 400-500 data of students as an MBA institute, right? So clustering is nothing but grouping your data in groups, those who are having similar kind of characteristics. इतना simple बात समझ लो. किसी को कुछ doubt? What do you mean by clusters? ये कहाँ यूज करोगे आप? For example, you are working in summer internship with some, let's suppose, automobile showroom, right? You are working in summer internship with some automobile showroom. आप cluster analysis कहाँ करोगे? You will take responses of, let's suppose, 400-500 customers walking into the showroom, right? Walking into the showroom. और showroom में जो 500 लोग आएंगे आप उनका सर्वे करोगे. किस लिए सर्वे करोगे? Let's suppose you are serving like what they look into that particular car. कार लेने के टाइम पे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज को देते हैं? कंफर्ट, सेफ्टी, माइलेज, लुक्स, स्टाइल, कॉस्ट, प्राइस, मेंटेनेंस, ड्यूरेबिलिटी, ये सब पैरामीटर पे आप 500, 400, 600 लोगों का डेटा लोगे और उसमें से आइडेंटिफाई करोगे कि ये 10 सेट ऑफ वेरिएबल्स में 600 में से अपनी कितनी ग्रुपिंग फॉर्म हो सकता है. ऐसा है क्या एक ही ग्रुप फॉर्म हो रहा है और 600 के 600 लोग इन सभी पैरामीटर को इंपॉर्टेंस देते? ऐसा तो नहीं होगा, राइट? ऐसा तो नहीं होगा कि सब लोग सबको इंपॉर्टेंस देते, ऐसा कभी होगा नहीं. तो ऐसा होगा कि देयर वुड बी फ्यू ग्रुप्स ऑफ पीपल जो सिमिलर सोच रखते हैं और देयर वुड बी फ्यू ग्रुप ऑफ पीपल दोज हु आर हैविंग सिमिलर थॉट प्रोसेस फॉर सेफ्टी, कंफर्ट एंड माइलेज. कुछ के लिए हो सकता है लुक, स्टाइल एंड प्राइस. तो ऐसे कितने ग्रुप्स फॉर्म हो सकते हैं आपके डेटा में और वो ग्रुप कौन से हैं और कौन से पैरामीटर के लिए है और हर एक ग्रुप में आउट ऑफ टोटल 600 पीपल कितने लोगों ने इंपॉर्टेंस, कितने लोगों का पार्टिसिपेशन हुआ है उस ग्रुप में. ये आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्लस्टर एनालिसिस यूज कर सकते हैं, राइट? सो क्लस्टर एनालिसिस कैन बी डन इन एनी काइंड ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन. जहां पे फैक्टर एनालिसिस यूज कर सकते हैं वहां पे आप क्लस्टर एनालिसिस यूज कर सकते हैं. सिंपल. एनी काइंड ऑफ psychographic research, any kind of behavioral research, any kind of research wherever you are using continuous variables. समझ में आ रहा है क्या यूज होगा? यस सर. राइट. क्या यूज होगा? क्या यूज होगा? टू groupify, right? To groupify or to make the groups of respondents, those who are having similar kind of
आइदर कैरेक्टरिस्टिक्स और ओपिनियन और बिहेवियर। तो जिस एस्पेक्ट में आप लगाओगे वो लॉजिक है, आप वो मतलब कौन से कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हो उसका उसके जैसा उसका आउटकम आएगा। अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर कर रहे हो तो कैरेक्टर वाइज उसका ग्रुपिंग आएगा। अगर आप ओपिनियन के वाइज कर रहे हो तो लाइक satisfied not satisfied वो ग्रुप फॉर्म हो जाएगा, right? So factor analysis is the technique which helps you to identify the various groups having similar characteristics, opinion or perception or satisfaction towards particular thing. तो वो particular thing क्या है, अब वो that depends on kind of your research. आप satisfaction research कर रहे हो, कौन सा क्वेश्चनर बनाए उसके ऊपर डिपेंड है कि वो कौन से टाइप का आपको ग्रुप्स बना के देगा। समझ में आ रहा है? Should I proceed? सब बाउंसर हो गए? Yes, sir. You can proceed. Yes, sir. सब बाउंसर हो गए? समझो बेसिक चीजें हैं। अभी ज्यादा लास्ट कैसे आप लोग एकदम लास्ट मोमेंट में ज्वाइन किए हो पता नहीं क्यों, बट स्टैटिस्टिकली समझाने का कोशिश करूंगा, प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। यू ऑल नो दैट आई हैव क्रिएटेड अ डेटा शीट विच इज टॉकिंग अबाउट दी कंज्यूमर परसेप्शन या कस्टमर परसेप्शन टुवर्ड्स कोविड-19 वैक्सीनेशन। फैक्टर एनालिसिस के लिए मैंने आपको जो डेटा शीट दिखाया था एसपीएसएस का, उसमें हमने क्या किया है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस, इन 7 मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट्स पे कस्टमर का ओपिनियन लिया है अबाउट कोविड-19 वैक्सीनेशन विच इज चेकिंग देयर परसेप्शन। हमने कौन सा ओपिनियन लिया है, उनका परसेप्शन क्या है कोविड-19 वैक्सीनेशन, प्राइस के बारे में क्या सोचते हैं, प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचते हैं, ऐसा हमने 7 एलिमेंट्स के बारे में लिया हुआ है, 7 मार्केटिंग एलिमेंट्स के बारे में, राइट? तो वो सर्वे का स्टेटिस्टिक्स हम यूज करेंगे, वही डेटा हम इसमें यूज करेंगे जो हमने फैक्टर एनालिसिस में यूज किया था। इतना ही है, फैक्टर एनालिसिस में आई हैव शोन यू द रिडक्शन ऑफ ऑल 35 फैक्टर्स इनटू 9 कंपोनेंट्स। अगर आपको याद है कितने कंपोनेंट्स निकाले थे हमने, 8 या 9 कंपोनेंट्स निकाले थे, राइट? तो अब हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सभी को नहीं लूंगा, सिर्फ 5 वेरिएबल्स को लूंगा और वो 5 वेरिएबल्स का ग्रुपिंग हम देखेंगे कि 5 वेरिएबल्स का, देखो ग्रुपिंग होता है, क्लस्टरिंग होता है एज पर द रिस्पॉन्सेस, और फैक्टरिंग होता है एज पर द वेरिएबल्स। ग्रुपिंग कैसे होता है, एज पर द साइज ऑफ नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेस, नंबर ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स गोइंग इनटू दैट पर्टिकुलर ग्रुप। इस ग्रुप में 25 है, उस ग्रुप में 50 है, तो इट टॉक्स अबाउट द ग्रुपिंग ऑफ योर डेटा सेट, कितने केसेस आपने लिए उसको ग्रुप करता है। फैक्टरिंग कैसे होता है, वेरिएबल के हिसाब, वेरिएबल रिस्पोंडेंट एक ही हो सकता है, फैक्टर में क्या हो सकता है, रिस्पोंडेंट एक ही हो सकता है, पॉसिबली रिस्पोंडेंट कम है तो भी चलेगा, बट लिस्ट ऑफ वेरिएबल ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिस्पोंडेंट ज्यादा चाहिए, वेरिएबल कम है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यू कैन ग्रुपिफाई ऑल 500 रिस्पोंडेंट्स फॉर सिंगल वेरिएबल ओनली, एक वेरिएबल है तो भी चलेगा, एक ही पैरामीटर का अगर आप ग्रुपिंग करना चाहते हो तो भी चलेगा, राइट? So this is talking about grouping in terms of number of respondents, and factoring talks about ranking in terms of various ranking in terms of important factors. तो वो वेरिएबल टेस्ट है, ये रिस्पोंडेंट्स टेस्ट है, नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स टेस्ट। सो एज यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ क्लस्टर एनालिसिस, कहाँ यूज होने वाला है, कैसे यूज होता है। Next point to understand is what kind of data you can put into variable, what kind of data you can collect for different variables, कौन सा data type आप, which kind of data you can put into cluster analysis test। तो cluster analysis में आप कौन सा data रख सकते हैं। So you can use all the 4 kinds of data in cluster analysis, provided there are 3 types of cluster analysis. I will tell you which are these 3 types. One is hierarchical cluster analysis. One is hierarchical cluster analysis, in which we find out the coefficient of clustering. Understand? ये चीजें हैं जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। What are the 3 types of, उसके बैकग्राउंड में ज्यादा पूछा नहीं जाएगा स्टैटिस्टिकल, बट मीनिंग में पूछा जाएगा, कॉन्सेप्ट में पूछा जाएगा। What are the 3 types of clustering? 3 types of clustering और 3 types of cluster analysis. Clustering भी बोला जाता है इसको, cluster analysis को सिंपल में clustering बोला जाता है, right? So what are the 3 types of cluster analysis, right? One is hierarchical cluster analysis,
another is k-mean cluster analysis, and third is the categorical cluster analysis, that is two group cluster analysis, right? So as I am saying that all the four types of data can be used in cluster analysis, but it does not mean that all the four types of data can be used in all the kind of cluster analysis. सभी क्लस्टर एनालिसिस के टाइप्स में ये सभी डेटा यूज नहीं होता है. हायरार्कियल क्लस्टर एनालिसिस में सिर्फ ऑर्डिनल कंटिन्यूअस डेटा यूज होगा. कौन सा? ऑर्डिनल एंड कंटिन्यूअस डेटा. के मीन क्लस्टर एनालिसिस में भी ऑर्डिनल, कंटिन्यूअस एंड रेशो डेटा यूज होगा. ऑर्डिनल, कंटिन्यूअस एंड रेशो, ये तीनों का पैरामीटर्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही है. जो डिफरेंसिंग चीज है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, राइट? सो हायरार्कियल क्लस्टर एनालिसिस एंड के मीन क्लस्टर एनालिसिस, इन दोनों में ऑर्डिनल, रेशो, कंटिन्यूअस डेटा यूज होगा. एक है कैटेगरिकल या ग्रुपिंग एनालिसिस, ग्रुपिंग क्लस्टर एनालिसिस, जिसकी कैपेसिटी है कि एक दिस ग्रुपिंग एनालिसिस कैन ट्रीट बोथ ऑर्डिनल एंड नॉमिनल वेरिएबल. ये दोनों को ट्रीट कर सकता है. सो इफ यू टॉक अबाउट डेटा टाइप्स रिक्वायर्ड फॉर क्लस्टर एनालिसिस, you can use ordinal, ratio, continuous data into hierarchical cluster analysis and k-mean cluster analysis. But there is third type of cluster analysis which is available, which is talking about two groups clustering, that allows you to use nominal data along with your ordinal data. So the third one is the most powerful clustering technique. Statistically देखा जाए तो two group cluster analysis is the most powerful clustering technique, क्योंकि it can help you to use all the data, that is nominal, categorical as well as ordinal, ratio, continuous, right? So if the question is there, which kind of data is being used in, let's see, hierarchical cluster analysis, or options are like nominal, ordinal, ratio, continuous, both B and C. तो आपको सोचना है. ऑर्डिनल रेशियो इज वन एंड द सेम, थोड़ा सा डिफरेंस है, मैंने आपको समझाया था क्या है, राइट? सो ऑर्डिनल रेशियो कैन बी वन ऑप्शन, कंटिन्यूअस कैन बी द सेकंड ऑप्शन, एंड बी एंड सी कैन बी द लास्ट ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन वुड बी नॉमिनल. सो एंड क्वेश्चन पूछा जाए कि हायरार्कियल में कौन सा यूज होगा. तो हायरार्कियल में तो सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा यूज होगा, दैट इज कॉल्ड एज ordinal, ratio, or continuous. So answer would be D, both B and C, right? So similarly, nominal data only can be used in your two group clustering, that is categorical cluster analysis. So this is about data, can be data requirements for cluster analysis. Then we'll talk about applications of cluster analysis. You keep reading and I'm not going to read it as it is. You can read it for yourself. I will let you know what are the applications of cluster analysis, right? So in various kinds of market research techniques, where you want to identify different patterns, different subsets, different groupings, different kind of frames that your data is forming. जब आपने डेटा एनालिटिक्स का वर्कशॉप किया होगा, तब आपने ये देखा है कि डेटा के साथ कितने तरीके से इंसान इंटरप्रिटेशंस निकाल सकता है. देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एनालिसिस यू कैन डू विद द सिमिलर काइंड ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा. तो अगर आप डेटा को फ्रेम में लाना चाहते हो, किसी एक वीडियो भी लगाओ ना. Move this person. Wait, don't worry. We will enjoy playing. Hey, Shaktiman. Video चलाओ, video. So please remove this person sir, from the meeting. Sir, you are the host. You can remove I him. know, guys. Don't worry.
I have asked him or her to start video, but I think he's gone. थोड़ा सा गांधीगिरी किया करो ना, क्या टेंशन लेने का, आने दो बट लोगों थोड़ी ना वो वीडियो ऑन करने के लिए गाना चलाया था सर। को। मैंने उसको अरे सर बोले थे शक्तिमान वाली वीडियो ऑन करने के लिए। हाँ, तो हम भी देख लिया होता 5-10 मिनट शक्तिमान, क्योंकि देखो जिसका जितना लेवल है समझने का वो वही तरीके का बिहेवियर करेगा, उसमें कोई ये नहीं है ना। वी कैन नॉट कंट्रोल अदर्स, निकाल सकते हैं बट ठीक है, अपने भी चले गया वो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने तो निकाला। सर निकालेंगे तो उनको लगेगा कि अपन परेशान। हाँ, हम परेशान, हम क्यों परेशान होंगे, हम तो मजे करेंगे 10 मिनट और लेट। चलो, so application wise I was talking to you all is like clustering is helping us to classify, groupify, to understand patterns of data. See, simple होता है, जब भी आप सर्वे करते हो तो आपको यही आइडेंटिफाई करना होता है कि how data is behaving, right? जब सर्वे करते हो 100, 50, 200, 400 रिस्पॉन्सेस लेते हो, तो इम्पोर्टेंट टास्क इज दैट हाउ, हमको यही देखना होता है कि डेटा बिहेव कैसे करता है। जो रिस्पॉन्सेस हमको मिले हैं, जब मैं डेटा सेट की बात करता हूँ तो ये होता है डेटा, राइट? दिस इज डेटा व्यू, ये होता है डेटा। ये डेटा का सिमिलरिटीज क्या है, देख के तो पता नहीं चलेगा ना। कैन यू आइडेंटिफाई बाय लुकिंग एट दिस नंबर्स कि इसमें से कितने नंबर्स मल्टीपल टाइम रिपीट हुए, कितने का क्या, 4 का 3 के साथ क्या कोरिलेशन है, 3 का 5 के साथ क्या रेशो है। We cannot identify what would be the mean for this variable, what would be the mean for this variable, what is the difference between mean of this and this variable. ये देख के तो हमको पता नहीं चलेगा ना। तो we have to use various statistical techniques. तो फैक्टरिंग क्या करता है, वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था कि फैक्टर आइडेंटिफाइज कि इन सब में से 2-4 इंपॉर्टेंट कौन से हैं। यहाँ तो 50 वेरिएबल है, 50-60 वेरिएबल्स है, इन सब में से इंपॉर्टेंट 4 क्या है वो फैक्टर आइडेंटिफाई करेगा, राइट? बट क्लस्टरिंग क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल ये वेरिएबल है, इसमें मैंने 384 रिस्पॉन्सेस लिए, 384 केसेस रिस्पॉन्सेस लिए। क्लस्टरिंग विल हेल्प मी टू आइडेंटिफाई कि इसमें से ऐसे कितने सिमिलर काइंड ऑफ ग्रुप्स हो सकते हैं। एक ग्रुप ये हो सकता है जिसका डिफरेंट नेचर है, ये ग्रुप ये हो सकता है जिसका कुछ डिफरेंट नेचर है। तो प्लेइंग विद डेटा इज नथिंग बट आइडेंटिफाइंग व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर योर डेटा हैज। तो फैक्टर एनालिसिस talks about higher weightage to the variable, cluster analysis talks about the patterns, right? So if you look after this particular slide, it helps you to identify different patterns. It helps you to data analysis in the sense like, again, grouping your data. And this is like image processing. It is image processing in the sense it will help you to picturize your data in a graph. आप आपके डेटा को ग्राफ में पिक्चराइज कर सकते हो। I will show you how it happens in the spaces. ग्राफ्स निकाल सकते हो, डेटा को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, वेयर यू विल गेट टू नो दैट व्हाट इज द ग्रुपिंग ऑफ वेरिएबल्स, व्हाट इज द ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर वेरिएबल। पहले ग्रुप में कितने वेरिएबल है, दूसरे ग्रुप में कितने हैं, दूसरे और तीसरे में कितना ग्रुप फॉर्म हो सकते हैं। सो इट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ योर वेरिएबल, राइट? सो क्लस्टरिंग कैन आल्सो हेल्प मार्केट डिस्कवर डिस्टिंक्ट ग्रुप्स। अगेन ये ग्रुपिंग की बात करता है, यू जस्ट रीड इट, व्हाट इज देयर परचेस पैटर्न। So if it is applicable or purchase pattern, then it will be applicable on every kind of behavior, right? So factor analysis and cluster analysis marketing में जितने भी सर्वे रिसर्च है उन सब में ये काम में आ जाएगा। Cluster analysis will be applicable in all kind of survey research where you would be interested to identify the different set of people for the different set of people for their different kind of behavior, opinion, respondents, preference, choice. अब ये समझने का कोशिश करो, मैं जो ये वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, जैसे आपका रिसर्च का ऑब्जेक्टिव चेंज होगा वैसे ये वर्ड्स चेंज हो जाएंगे, बट इसका एप्लीकेशन कहाँ है? ऑल काइंड ऑफ साइकोग्राफिकल मैपिंग, ऑल काइंड ऑफ कस्टमर साइकोलॉजिकल मैपिंग। समझे? जहां जहां कस्टमर्स को साइकोलॉजी आपको अंडरस्टैंड करना है वहां आप क्लस्टर एनालिसिस लगा सकते हो। तो कई कस्टमर्स का साइकोलॉजी तो हमको जानना ही है, दैट इज व्हाट इज मार्केट रिसर्च मेन ऑब्जेक्टिव। जब मैंने आपको मार्केट रिसर्च का ऑब्जेक्टिव समझाए थे, इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द ओपिनियन, परसेप्शन, साइकोलॉजी, इंपॉर्टेंस, चॉइस, प्रेफरेंस, सेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन, मोरल, अवेयरनेस, एटीट्यूड, बिहेवियर ऑफ कस्टमर्स। इन सब चीजों में आपको मार्केट रिसर्च काम में आएगा, राइट? साइकोलॉजिकल मैपिंग करने के लिए, प्रेफरेंशियल ग्रुपिंग करने के लिए, चॉइस बेस्ड ग्रुपिंग करने के लिए आपको फैक्टर एनालिसिस एंड क्लस्टर एनालिसिस काम में आएगा, राइट?
ये in the field of biology it is called as taxonomies, used to derive plant and animal taxonomies. Taxonomies is like testing and identifying various characteristics. ये होता है ना टेक्सोनॉमी, क्या होता है, जहाँ पे हम बोलते हैं ना ये किस फाइलम में है, किस फैमिली में है, बॉटनी और जूलॉजी वाले लोग समझ जाएंगे। एक्चुअली आपको इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, फिर भी देयर वुड बी अ टेक्सोनॉमी मींस द क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स हैज बीन डन. वी आर कमिंग इनटू द मैमल्स, right? We are mammals, then leanders, and then neoleanders. There are some kind of different things. So if you want to groupify your animal plants in different kind of nomenclatures, you can use cluster analysis. कैसे? 10,000 ट्रीज का नाम लिखो, फिर उसका साइंटिफिक नेम लिखो, फिर उसका बॉटनिकल नेम लिखो, फिर उसका कॉमन नाम लिखो, and then you can form the cluster analysis. Then automatically you will get to know that कि कौन से ग्रुप में कितने 10,000 में से कितने प्लांट्स गए हैं. So it helps you to manage the taxonomy. Taxonomy is a pattern of nomenclature which classifies different animals and plants. बॉटनी वालों को समझ जाएगा, कॉमर्स वालों को डिफिकल्ट जाएगा, राइट? बॉटनी वालों ने 12th में रट्टा मार के याद किया होगा, family is this, phylum is this, species is this, and common name is this, and scientific name is that, right? है कोई याद? किसी को याद आ रहा है? I had a botanical background, so I am aware. Anyone from science background out of almost 80-90 people? जिसको पता है what is family, phylum, species, subspecies, and then common name? ये चार चीजें हमको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती थी जब आप बॉटनी में किसी ट्रीज का स्टडी करते थे या जूलॉजी में किसी एनिमल का स्टडी करते थे. तो नॉमेनक्लेचर में हेल्प करता है क्योंकि इट हेल्प्स टू ग्रुपिफाइज, राइट? अगर आपके पास रिकॉर्ड्स है, 10,000 रिकॉर्ड्स है किसी एनिमल, डिफरेंट एनिमल के नाम, फैमिली, फाइलम और उसका ये सब कैटेगरी का, तो आपको ग्रुप करने में क्लस्टर एनालिसिस इजी जाएगा. सिमिलरली आपके पास अगर किसी 500-600 कस्टमर्स का ओपिनियन है ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स, तो उसको ग्रुपिंग करने में आपको क्लस्टर एनालिसिस हेल्प करेगा. सो क्लस्टरिंग आल्सो हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर. ये तो बहुत सब्जेक्टिव है. सिमिलर लैंड यूजेस, लाइक सिमिलरिटीज आइडेंटिफाई करने में काम आएगा, इतना याद रखो. लाइक व्हाट काइंड ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न योर पीपल हैज, योर एरिया हैज, दैट क्लस्टरिंग कैन बी डन. So clustering is also helps in classifying documents on web in the form of like information discovery. Clustering, but this kind of clustering survey requires very specific kind of data coding. Coding बहुत important है इस clustering में, right? So हमारे लिए important क्या है? This one. Again, clustering is also used in outlier detection applications such as detection of credit card fraud. ये तो functional है, कौन से function में use किया जाएगा, right? And as a data mining function, this one is useful for us. So 1, 2 and last, ये तीन चीजें आप फिर से एक बार पढ़ो. What is clustering is useful? बाकी ये तीन चीजें application से, एक botanical application के लिए समझाया है, एक commerce application के लिए, business and commerce, and one is like logical reasoning, right? So try to read it and understand. The basic objective is about forming different groups, right? Any difficulty in this slide? No, sir. Chalo. So let's talk about types of clustering. So hierarchical clustering, partitioning clustering, that is K-mean method. Actually understand, मैं जब आपको स्पेसेस अभी दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि फैक्टरिंग में क्लस्टरिंग में क्या होगा. क्लस्टरिंग में क्या होगा, आपको सबसे पहले अगर के मीन या पार्टीशनिंग मेथड यूज करनी है तो हायरार्कियल आपको रन करना ही पड़ेगा. इट इज लाइक again when we were talking about factor analysis, we have talked about fixed number of factors and number of factors based on the eigen values. स्टैटिस्टिकल टेस्ट में जितना उनका सिग्निफिकेंट कोरिलेशन वेटेज था उसके हिसाब से जो आइगन वैल्यू आएगी उसके ऊपर वो
सॉफ्टवेयर को स्टडी करके आइगन वैल्यूज के ऊपर जितने मैक्सिमम कोएफिशिएंट फॉर्म हो सकते हैं उतने फॉर्म करो, या फिर फिक्स नंबर ऑफ कोएफिशिएंट दे दो जिसमें हमें 2 या 4 बोल सकते थे या जितना भी हमको चाहिए था, राइट। सो वो जैसे फैक्टर में हमको फिक्स नंबर था या बेस्ड ऑन आइगन वैल्यू था, वैसे क्लस्टर में हमारे पास क्या है, क्लस्टर में हमारे पास क्या है, वी हैव टू आइडेंटिफाई इट कि हाउ मेनी मैक्सिमम क्लस्टर्स कैन बी फॉर्म्ड इन योर डेटा। आपके डेटा में मैक्सिमम कितने क्लस्टर्स फॉर्म होते हैं, ये अगर आपको पता है तभी आप विद इन द क्लस्टर्स फाइंड कर सकते हो डिफरेंस, एंड देन अमॉन्ग द क्लस्टर्स डिफरेंस फाइंड कर सकते हो, राइट। यस, एनी क्वेरी? So just read it. This method creates a hierarchical decomposition of the given data sets and objects. क्या करता है? Hierarchical decomposition. It estimates the clustering weightage. It estimates the clustering coefficient for all the cases. अपने cases कितने थे data set में? 384 cases लिया हुआ मैंने। कितने cases मतलब क्या? Number of samples. कितने लोगों से सर्वे किया है? 384 लोगों से सर्वे किया है। अब ये क्या करेगा? हायरार्किकल मेथड में क्या करेगा? सबका अपना अपना कोएफिशिएंट वेटेज निकालेगा, सबका अपना अपना कोएफिशिएंट वेटेज निकालेगा, स्ट्रेंथ ऑफ कोएफिशिएंट निकालेगा, एंड बेस्ड ऑन दैट इट विल अरेंज योर रिस्पोंडेंट्स इन अ हायरार्किकल ऑर्डर, इन अ लाइक असेंडिंग ऑर्डर। ये असेंडिंग ऑर्डर में उसको पुट करेगा, एंड देन वी कैन आइडेंटिफाई कि कौन से ग्रुप में कितना वेटेज है, and based on that weightage we will identify how many groups it is forming. So hierarchical method will help us to identify the number of groups only. समझो, hierarchical method will be helping us to identify the total number of groups formed in your data set. ये हमको ये नहीं बताएगा कि कौन से ग्रुप में कितने आते हैं, वो नहीं बताएगा, सिर्फ कितने ग्रुप होते हैं वो बताएगा। तो अगर कौन से ग्रुप में आते हैं वो आइडेंटिफाई करना है, तो देन वी हैव टू गो फॉर पार्टीशनिंग मेथड, दैट इज के मीन मेथड। के मीन मींस के इज नथिंग बट द नंबर ऑफ क्लस्टर्स फॉर्म, द नंबर ऑफ क्लस्टर्स फॉर्म। सो नंबर ऑफ क्लस्टर फॉर्म अगर हम स्पेसेस को बताएंगे कि हमने 3 क्लस्टर फॉर्म करने हैं, 3 क्लस्टर में बताओ कि कौन से क्लस्टर में कितने कितने रिस्पोंडेंट्स आते हैं, उस टाइम पे आपको फिर के का नंबर फाइंड करना पड़ेगा, और के का नंबर फाइंड करने के लिए आपके पास है हायरार्किकल मेथड। सो अगर आपको के मीन यूज करना है, मतलब कौन से क्लस्टर में कितने लोग आते हैं वो आइडेंटिफाई करना है, तो आपको के मीन करना पड़ेगा। बट के मीन करने के लिए के की वैल्यू चाहिए, तो के कहाँ से आएगा? वो आएगा हायरार्किकल से। तो हायरार्किकल में क्या होता है? कोएफिशिएंट निकाला जाता है बेस्ड ऑन द एसोसिएशन बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स, और उसका रैंकिंग किया जाता है। करके दिखाऊंगा, समझ जाओगे। फिलहाल याद रखो, हायरार्किकल क्लस्टरिंग का मतलब होता है, हायरार्किकल क्लस्टरिंग का मतलब होता है फाइंडिंग आउट क्लस्टरिंग कोएफिशिएंट फॉर ऑल द वेरिएबल्स and putting them in ascending order, that is hierarchical clustering. जितने भी आपके सैंपल लिए हुए हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेरिएबल्स, रिमेंबर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेरिएबल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट सैंपल, केसेस, रिस्पोंडेंट्स नंबर। जितने आपने रिस्पॉन्सेस लिए हैं उन सब रिस्पॉन्सेस का कोएफिशिएंट निकालेगा अमॉन्ग द एसोसिएशन बिटवीन दी, एक दूसरे के साथ उसका कितना डिफरेंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन एंड एसोसिएशन निकाल के। बैकग्राउंड में होती है ये सब चीजें, वो अब क्या है कैसा है वो हमको फिर से 4-5 लेक्चर पीछे जाना पड़ेगा। सो यही से समझने का कोशिश करो। सो हायरार्किकल मेथड में कोएफिशिएंट निकलेगा और एक रैंक तैयार हो जाएगी, रैंकिंग तैयार हो जाएगा, ऑर्डर तैयार हो जाएगी। फिर उसमें ऑर्डर को देख के हमको पता चलेगा कि इसमें से कितने ग्रुप्स फॉर्म हो रहे हैं, एंड फिर वो हम के मीन क्लस्टरिंग को बताएंगे कि इतने ग्रुप फॉर्म हो रहे हैं, अब इसके आगे तुम ये बताओ कि कौन से ग्रुप में कितने लोग हैं। तो वो स्टैटिस्टिकल टेस्ट हमको उसके आगे बताएगा कि ये 3 ग्रुप जो फॉर्म हुए हैं वो कौन से पैरामीटर के हैं, और उसके अंदर कितने कितने लोग आते हैं आउट ऑफ योर टोटल 384 रिस्पोंडेंट। आज जो डेटा सेट सामने है उसी की बात करते हैं, राइट। सो एंड 2 क्लस्टर मेथड इज लाइक वेयर यू कैन यूज कैटेगरिकल डेटा एंड आइडेंटिफाई द ग्रुपिंग ऑफ योर, मैंने आपको शायद क्रॉस टेबुलेशन नहीं समझाया, वो सिलेबस में था नहीं, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। सो 2 क्लस्टर डेटा मेथड्स मींस it helps you to find out the clusters within 2 groups. For example, मेल और फीमेल में कितना, मेल के ग्रुप में कितने ग्रुप्स हो सकते हैं, फीमेल के ग्रुप में कितने ग्रुप्स है। सो सिमिलर डेटा सेट बट हैविंग 2 डिफरेंट ग्रुप्स। सो 2 cluster methods is groups within the groups.
सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रुप्स विद इन द ग्रुप। सो आपको यही आइडेंटिफाई करना है कि कोविड-19 के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में लोग क्या सोचते हैं। तो 2 क्लस्टर मेथड क्या बताएगी, कोविड-19 वैक्सीन के बारे में मेल में कितने ग्रुप्स फॉर्म हो रहे हैं और फीमेल में कितने ग्रुप्स फॉर्म हो रहे हैं। So it is using categorical data. Male and female is categorical data. You know that, right? It's nominal data. So it is using, but here you cannot use any kind of categorical data. Nominal data आप use नहीं कर सकते. So try to understand. Remember जो मैं बोल रहा हूँ, जब हम practically करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बोल रहा था, right? ये लिंकेज को हम जरा बाद में पढ़ते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ what is hierarchy, what is partitioning and what is two cluster method. So if we go to this SPSS sheet, can you see the screen? Screen दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So analyze में जाएंगे, हमको क्या करना है, क्लासिफाई करना है। What clustering does? Cluster does classification. तो क्लासिफिकेशन कहाँ करना है, ये देखो यहाँ पे है 3 मेथड्स। यहाँ पे क्लस्टरिंग के कितने मेथड है, क्लासिफिकेशन के कितने मेथड है, हायरार्कियल क्लस्टर, के मीन क्लस्टर, 2 स्टेप क्लस्टर, राइट। हमको हायरार्कियल क्यों करना है, एक बात याद रखो, सबसे पहले मैं आपको फिर से समझाता हूँ। ये जो है उनका डेमोग्राफिक पैरामीटर्स है, राइट। अब ये जो लोगों ने पहले मेरे साथ बात किया है उनको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। दीज आर डेमोग्राफिकल पैरामीटर्स, राइट। उनका पर्सनल कैरेक्टर्स है, नॉमिनल डेटा पे यूज किया। यहाँ पे देखिए नॉमिनल डेटा पे हमने उनको मेजर किया हुआ है, राइट। और यहाँ पे क्या आता है, उनका ओपिनियन टूवर्ड्स प्रोडक्ट। पहले 5 पैरामीटर्स प्रोडक्ट के बारे में बोलते हैं, दूसरे प्राइस के बारे में बोलते हैं। लुक एट दिस, ये प्रोडक्ट की बात कर रहा है, ये प्राइस की बात कर रहा है। नेक्स्ट 5 इज टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन, प्लेस। तो हम सिर्फ ये 5 की बात करेंगे आज, हम सिर्फ ये 5 का बात करेंगे। Talking about the opinion of 384 cases, opinion of 384 cases, understand, talking about opinion of 384 cases for these 5 variables. Analysis क्या है अपना, हमको ये देखना है कि 384 लोगों में से हमने जो ओपिनियन इन 5 पैरामीटर के लिए है, प्रोडक्ट रिलेटेड इश्यूज, प्रोडक्ट रिलेटेड परसेप्शन के लिए लिया है कोविड-19 के, उसमें 384 में कितने ग्रुप फॉर्म होते, राइट। 384 लोगों ने जो रिस्पॉन्सेज दिए हैं इस प्रोडक्ट रिलेटेड 5 पैरामीटर्स के लिए, उसमें कितने ग्रुप्स फॉर्म हो रहे हैं वो हमको आइडेंटिफाई करना है। कर सकते हैं क्या, देख के कर सकते हैं क्या। दीज आर 5 पैरामीटर्स। चलो लेट्स सपोज कहाँ से शुरू होता है ये, पहले 6-7 छोड़ दो, डेमोग्राफिक के है तो ये डेमोग्राफिक है, हाँ ये दिस इज, ये है, यहाँ से शुरू होगा। ये 5 पैरामीटर है अपने, राइट। कौन से, ये है 5 पैरामीटर प्रोडक्ट वाले। कैन यू आइडेंटिफाई, यू कैन आइडेंटिफाई कि ये 5 में कितने ग्रुप्स फॉर्म हो रहे हैं, दिख रहा है कुछ। हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, हम मीन मोड मीडियन निकल के भी हम ग्रुप फॉर्म्स नहीं चेक कर सकते। तो हमको क्या करना है, ये इस डेटा का क्लस्टरिंग करना है। तो हम लोग 384 में जाएंगे, 384 रिस्पोंडेंट्स को 5 पैरामीटर्स के लिए ओपिनियन जो दिया है उसमें डिफरेंट ग्रुप्स फॉर्म कैसे होते हैं वो देखने वाले। सो लेट्स गो टू दिस एनालाइज, देन दिस क्लासिफिकेशन, देन हायरार्कियल क्लस्टर, राइट। अब आप हायरार्कियल क्लस्टर को जब सिलेक्ट करते हो तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। मैं इसको रिसेट करता हूँ एंड सो क्या बोल रहा था मैं आपको, 5 पैरामीटर्स प्रोडक्ट के लिए जो है, रीड करो आप, रीड करते रहिए, आपको पता चल जाएगा। ये 5 पैरामीटर्स आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट। क्या बोल रहे हैं वो देखो, प्रोडक्ट सेफ है, एफिशिएंट है, चाइल्ड पे सेफ, चिल्ड्रंस पे सेफ है, वेल टेस्टेड बाय गवर्नमेंट है, ऑफर ट्रस्टवर्दी कंपनीज से आया हुआ है। सो दीज आर द 5 पैरामीटर्स टू विच वी आर मेजरिंग परसेप्शन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन कस्टमर्स, राइट। तो हमको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कितने ग्रुप फॉर्म हो सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हायरार्कियल क्लस्टर में आइडेंटिफाई करेंगे कि ग्रुप कितने बन रहे हैं। हम ये नहीं ढूंढ रहे कि कौन कौन से ग्रुप में जा रहा है, क्योंकि हमको वो पता ही नहीं है अभी तक। वो उस लेवल तक पहुंचने के लिए हमको 3 स्टेप्स से जाना पड़ेगा क्लस्टर एनालिसिस, राइट। सो ये पैरामीटर्स मैंने यहाँ लिया 5 को। तो स्टैटिस्टिक्स में मैं अगर देखूंगा तो ये मुझे एग्लोमेरेशन शेड्यूल, ये एग्लोमेरेशन इज समथिंग लाइक
काइंड ऑफ वेटेज एस्टिमेशन ऑफ वेटेज, ये भी एक फैक्टर एनालिसिस है और कोरिलेशन काइंड का मेथड है जो बैकग्राउंड में होते रहते हैं सॉफ्टवेयर की, राइट। उतने तक जाने की जरूरत नहीं, दैट इज नॉट देयर इन योर सिलेबस, बैकग्राउंड सिलेबस में नहीं आपके, आपके सिलेबस में सिर्फ इंटरप्रिटेशन है। आपके सिलेबस में क्या है, ये प्रोसेस एंड इंटरप्रिटेशन। तो बैकग्राउंड में क्या चल रहा है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। स्टैटिस्टिक्स में हमने देखा ये जो मेथड है मैंने उसको कुछ नहीं किया, नॉर्मल रखा। प्लॉट्स हम रखते हैं, ज्यादा प्लॉट्स का भी हमको जरूरत नहीं है। एक यहाँ पे है सिलेक्ट द मेथड, राइट, यहाँ पे मेथड सिलेक्ट करनी पड़ती है। वर्ड्स मेथड सिलेक्ट कर रहे हैं हम बिकॉज इट्स द मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट इजीएस्ट मेथड टू इंटरप्रेट, most common and most popular method hai. These all other methods are having different kind of applications based on the properties of your data, based on the objectives of your analysis. आप एनालिसिस क्यों कर रहे हो? So अगर आपका डेटा बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्पोंडेंट से लिया है, आई मीन हेट्रोजीनियस सैम्पलिंग से लिया हुआ है, तो इसमें से कोई प्रोसेस आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक nearest neighborhood, further neighborhood. Just a minute. Okay, so ये है most used method, words method. Then इसको ज्यादा कुछ सोचो मत और इसको हम छोड़ देते हैं। एंड मैं रन कर लूंगा अगर इस क्लस्टर एनालिसिस को, तो जस्ट लुक एट द रिजल्ट्स, हमको रिजल्ट्स क्या मिलते हैं। एक्चुअली अगर आप सोचोगे तो मैंने डेटा सेट कितना का लिया था, 384 का। इस टेबल को देखो, एन कितना है, सैंपल साइज कितना है, 384, दैट इज 384, राइट। 384 को अगर आपको ऑर्डरिंग करना है तो लॉजिक क्या बोलता है, स्टैटिस्टिक्स हैज टू ट्रीट एवरी सिंगल रिस्पोंडेंट एज अ क्लस्टर। शुरू में बिगिनिंग की बात करते हैं, आप नॉर्मली इस डेटा को अगर देखोगे तो क्या है, हर एक डेटा अपने आप में एक क्लस्टर है, हर एक रिस्पोंडेंट अपने आप में एक क्लस्टर है, राइट। अगर आपको इसका वेटेज निकालना है तो आपको इंडिविजुअल वेटेज निकालना पड़ेगा, हर रिस्पोंडेंट का वेटेज निकालना पड़ेगा, एंड देन उसको आप रैंकिंग में लगा सकते हो, ऑर्डर में लगा सकते हो, राइट। तो स्टैटिस्टिक्स भी क्या करता है, हर एक रिस्पोंडेंट, अभी देखो स्टेजेस, स्टेज मीन्स रिस्पोंडेंट 1 2 3 4 5 6 7, राइट। सो स्टेजेस में क्या किया उसने, वेटेज कोएफिशिएंट फाइंड किया, और कितने के लिए किया, ऑल 384 के लिए किया, पूरे के पूरे 384 केसेस के लिए उसने कोएफिशिएंट फाइंड किया। अब इंपैक्ट कितना है, कोएफिशिएंट कितना है, कोएफिशिएंट की वैल्यू कितनी हो सकती है। सो कोएफिशिएंट वैल्यू कैन बी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। कोएफिशिएंट कितना आ सकता है आपका, इट इज अबाउट डिग्री ऑफ एसोसिएशन, इट इज अबाउट डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो एसोसिएशन कितना हो सकता है, कितना भी हो सकता है, राइट। कितना एसोसिएशन मतलब closeliness, right, closeliness. We cannot define how much it is close to each other, how much it is associated with each other. For example, you say that I am associated with Pune University. How would you measure that association? कितना भी हो सकता है, I am associated with RIM. मेरा association infinity तक हो सकता है, right? So the coefficient is talking about association between this variable with rest all variable. Right, so it is always from 0 to infinity, it never goes into negative thing. So it has calculated coefficients for all 384 cases. यहाँ पे दिख रहे हैं हमको 100 ही, मैं आपको दिखाता हूँ all 384 का। सेट रोज हमने लिमिट 100 बोला है, वहाँ पे हम 500 कर देते हैं तो वो 384 का पूरा दिखाएगा। चलो अभी देखो, दो चीजें समझना है यहाँ पे आपको, सिर्फ कितने क्लस्टर फॉर्म किया है, 1 और 2 क्लस्टर फॉर्म किए हैं और कोएफिशिएंट्स निकाले हैं। सो द कोएफिशिएंट्स क्या है, this one is the first respondent and it goes to the respondents number 384. सबको दिख रहा है ना, राइट, राइट। यहां पे देखो अब क्या आ गया, 384 it is like हमने लिए थे सैंपल 384, यहाँ पे दिखा रहा है 383 क्यों आया है, क्योंकि किसी एक वेरिएबल के साथ सबका एसोसिएशन निकाला हुआ है। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से n-1 इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, किसी एक वेरिएबल के साथ सबका निकाला हुआ है, तो वो जो वेरिएबल है
वो काउंट में लिया नहीं उसने, क्योंकि खुद का खुद के साथ तो लाइक खुद का खुद के साथ एसोसिएशन कितना है, इट इज लाइक काइंड ऑफ यू कैन नॉट कैलकुलेट इवन, यू कैन नॉट एस्टिमेट, सो इट इज जीरो। सो एक वेरिएबल ऐसा है जो डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से काउंट में नहीं लिया गया है। सो बचे हुए 384 रिस्पोंडेंट्स के लिए, बचे हुए 384 रिस्पोंडेंट्स के लिए उसने अपना कोएफिशिएंट कैलकुलेट करके दिखाया। अब इसको इंटरप्रेट करने का लॉजिक क्या है वो समझो। इसको इंटरप्रेट उस लॉजिक से करते हैं, यू हैव टू आइडेंटिफाई द जंप्स हैपनिंग इन द डेटा, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन इनटू द डेटा। मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कहाँ हो रहा है वो आइडेंटिफाई करना है। अगर आप नीचे से देखना शुरू करते हो, इट इज बॉटम अप अप्रोच, इट इज कॉल्ड एज बॉटम अप अप्रोच ऑफ क्लस्टरिंग। अब थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो और बाउंस भी हो जाएगी, पीछे क्या चल रहा है वो भी समझ में नहीं आएगा, बट जितना समझ में आता है मीनिंग और एप्लीकेशन उसको समझो, राइट। सो इट इज बॉटम अप अप्रोच। हम नीचे से देखना शुरू कर देंगे क्योंकि इट इज ऑर्डर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। सो असेंडिंग में है तो जब नीचे जाओगे तो सबसे बड़ी वैल्यू है। तो ट्राई टू चेक आउट द डिफरेंसेस बिटवीन 383rd केस, 383rd केस टू 382nd केस। कितने का डिफरेंस है 383rd में और 382nd में? आगे पीछे लॉजिकल देखा जाए तो 1000 पॉइंट्स का डिफरेंस है, राइट। 1000 पॉइंट्स का डिफरेंस है। और 382nd से 381 में देखा जाए तो फ्यू, इट्स लाइक ओनली 300 पॉइंट्स का डिफरेंस है। और यहाँ 200 डिफरेंस है, यहाँ तो अगेन 200, यहाँ पे 100, फिर कम 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 होते जाएगा। सो इसका मतलब है द मैक्सिमम डिफरेंस वी हैव, इनटू द 383rd एंड 382nd केस। तो क्लस्टर कितने तैयार हो सकते हैं? क्लस्टर तैयार हो सकते हैं दो, जो हमने वहां सबसे टेबल के ऊपर में ही देखा है, दो क्लस्टर हो गए हैं। तो दो क्लस्टर कहाँ हो गए? वन इज फ्रॉम हियर एंड अनदर इज फ्रॉम हियर। अब ये मत समझो कि ये जो 384 का नंबरिंग है वो एज सिमिलर एज दिस नंबर है। इस नंबरिंग के सिमिलर वो नंबर नहीं है। इट हैज बीन कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द एसोसिएशन वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल विद वन फिक्स्ड वेरिएबल। किसी एक को फिक्स्ड वेरिएबल उसने लिया, कांस्टेंट वेरिएबल, राइट, कांस्टेंट रिस्पोंडेंस, आई एम सॉरी, कांस्टेंट रिस्पोंडेंस लिया। सो what do we understand from this table? We have understood that out of 384 cases we have got 2 clusters. ये तो हायरार्कियल में हमको क्या पता चलता है? सिर्फ नंबर ऑफ क्लस्टर पता चलता है, राइट। Do we have as good as difference between 383rd and 382nd in any other case? देखने का कोशिश करो। Do we have as good as difference between 383rd and 382nd cases in any other group of case? 1000 इसमें जो डिफरेंस है इसके लगभग आसपास का डिफरेंस, लगभग आसपास का डिफरेंस। इसमें 1000 है, इसमें कम से कम 900 तो होना चाहिए था, तो हम बोलते हैं कि और एक क्लस्टर बन रहा है, राइट। इसमें 800 होना चाहिए था, फिर हम बोलते हैं कि और एक क्लस्टर बन रहा है। बट यहाँ 1000 है तो यहाँ पे डायरेक्ट 200 भी आया है, 300 भी आया है। So we cannot call it like it's a cluster, it's a difference. It is not differentiating between 82 and 81. So 82 and 81 में ज्यादा difference नहीं है, so it is a similar group. So that is one cluster. फिर 80 और 81 में भी ज्यादा difference नहीं है, तो वो that is also similar group. So 82 के ऊपर सब एक ग्रुप में चले जाएंगे, 83 के नीचे सब एक ग्रुप में आ जाएंगे, कोई ग्रुपिंग फॉर्म नहीं हो रही है। एंड लुक एट दिस, इट इज शोइंग यू अबाउट द केसेस। ये 374 को कौन सा नंबर आया हो, कौन सी केस आया हुआ है, ये बता रहा है ये वैल्यू, राइट। सो दिस इज अबाउट आइडेंटिफाइंग हाउ मेनी क्लस्टर्स कैन बी फॉर्म। कितने क्लस्टर फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे? कितने क्लस्टर फॉर्म हो रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आया? 2 Yes. How many clusters are being formed and how? अगर मैं आपको इसका प्लॉट निकाल के दिखाऊं, मेरा आवाज आ रहा है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. Right. How many clusters are being formed then? Can you tell me? 2 clusters are being formed, right? Based on what? Based on the clustering coefficient value.
एंड द डिफरेंस बिटवीन क्लस्टरिंग कोएफिशिएंट वैल्यू, राइट। अब ये लॉजिक है आइडेंटिफाई करने का। अगर ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो सिमिलर है इसका मतलब, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसका मतलब ये दोनों क्लस्टर सिमिलर है, डिफरेंस तो यही पे आ रहा है। कभी कभी क्या होता है पता है क्या, इट डिपेंड्स ऑन द डेटा सेट, आपको डिफरेंस यहाँ तक मिलते जाता है। पहले में 1000 मिलेगा, दूसरे में 950, तीसरे में 850, फिर 800, फिर 700, फिर 750। सो बहुत सारे क्लस्टर फॉर्म हो जाते हैं, 10-5 क्लस्टर भी फॉर्म हो सकते हैं, 20-25 क्लस्टर भी फॉर्म हो सकते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ डेटा। तो जब तक आपको लगता है कि क्लोज डिफरेंशिएशन नहीं है तब तक आप क्लस्टर को कंसिडर कर जाओगे। और ये क्या है, लॉजिक है, थंब रूल है, ये लॉजिक है कि क्लस्टर का मतलब क्या है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाला। मैंने इसको एक्सेल में क्यों डाला है, आई विल शो यू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस क्लस्टरिंग डेटा, राइट। तो अगर आप ग्राफ निकालते हो, ग्राफ किस चीज का, दिस केस का, ये जो केसेस है केसेस का और कोएफिशिएंट का, इन दोनों का अगर आप ग्राफ निकालते हो जिसको हम लाइन चार्ट बोलते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि दो ही ग्रुप क्यों फॉर्म होते हैं। मैं आपको बताता हूँ ग्राफिकल में। देखो ये ग्राफ स्पेसेस में नहीं मिलेगा आपको, ये आपको बनाना पड़ेगा। अगर मैं इसको इंसर्ट करता हूँ एंड देन आई गो टू द डिफरेंट लाइन चार्ट्स एंड मोर ऑप्शंस एंड देन आई क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर एंड देन आई क्लिक ऑन ओके, राइट। सो आई कैन गेट दिस पर्टिकुलर ग्राफ, राइट। अब देखो ग्राफ में अपर शिफ्ट लोअर शिफ्ट मोमेंट कहाँ पे है, अब दिख रहा है ना कितने क्लस्टर्स है, यहां से शुरू होके यहाँ You are तक। not audible. हाँ नो, हेलो, एम आई ऑडिबल नाउ? Yes, sir. Yes, You are sir. clear. ओके You are audible, sir. ओके। सो ग्राफ में शुरू, अगर आप ग्राफ को देखते हो तो ग्रुपिंग कहाँ कहाँ हो रही है। अभी 0 से अगर शुरू करते हो, केस नंबर 1 से अगर शुरू करते हो, ये केस वैल्यू है, ये कोएफिशिएंट वैल्यू है, राइट। तो केस नंबर 1 से अगर शुरू करते हो तो ऑलमोस्ट 331, 346, यहाँ तक कोई डिफरेंस ही नहीं है। समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो ये एक क्लस्टर हो गया और यहाँ से शुरू हो गया डिफरेंस, तो ये दूसरा क्लस्टर हो गया। तो इसके लिए हम बोल रहे हैं कि 2 क्लस्टर फॉर्म हो गया। वैसे हमको क्लस्टर टेबल में स्पेसेस आउटपुट में बता ही गया है कि 2 ही क्लस्टर फॉर्म हुए हैं, फिर भी हम डबल चेक कर रहे हैं कि एंड सी यहाँ पे 2 क्लस्टर दिया हुआ है उसने। अगर 3 क्लस्टर आते हैं तो ये यहाँ पे 1 क्लस्टर और बढ़ा देता है, 4 आते हैं तो क्लस्टर बढ़ जाता है, राइट। बट इस डेटा को देख के अगर स्पेसेस ने आपको बोला है कि 2 ही क्लस्टर हो रहे हैं, in any case if you really want to differentiate these 2 clusters again, नीचे चला जाता है, in any case if you want to consider these 2 as a cluster again, आपको लगता है कि चलो यहाँ 1000 का डिफरेंस, यहाँ 300 का है, फिर भी मैं क्लस्टर कंसिडर करना चाहता हूँ, तो यू कैन कंसिडर इट अ क्लस्टर एंड टेल के मीन एनालिसिस कि 2 की जगह 3 क्लस्टर दे दो मुझे। के मीन को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, के मीन आप अगर बोलते हैं के मीन एनालिसिस, अभी आइडेंटिफाई क्या करना है, हायरार्किकल एनालिसिस में इतना पता करना है कि कितने क्लस्टर हो गए। के मीन में पता करना है कि कौन से वेरिएबल्स में है और कितना रिस्पॉन्डेंस उस क्लस्टर में है। अगर हायरार्किकल का समझ के आप 2 ही क्लस्टर देते हो तो एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। अगर आप के मीन को बोलते हैं कि नहीं ये 1422 और 1206 में 200 का डिफरेंस है, उसको भी एक क्लस्टर करो, तो आपको सिर्फ नंबर ऑफ क्लस्टर ज्यादा डालना है के मीन में, तो 2 की जगह 3 डालना है। चलो करके दिखाता हूँ। तो अगर अभी फिर से जाओ एनालिसिस में एंड फिर स्केलिंग नहीं क्लासिफिकेशन के मीन क्लस्टर, राइट। अब है तो सिमिलर चीज, फिर हमको क्या करना है, हमने क्लस्टर के मीन से एनालिसिस उधर से हमने आइडेंटिफाई। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ उसने 2 बाय डिफॉल्ट लिया, इसने क्या किया 2 बाय डिफॉल्ट लिया। क्यों लिया, क्योंकि प्रीवियस जो टेस्ट हुई है उसका बैकअप डेटा इसमें सेव हो गया, राइट। इसने 2 ले लिया। अगर आपको लगता है कि मुझे इसको क्लोजली ट्रीट करना है और मुझे ये भी एक क्लस्टर दिखाना है, उस क्लस्टर में भी चेक करना है मुझे कितने होते हैं, तो आप यहाँ 2 की जगह 3 कर सकते हो, राइट। बट वो लॉजिकल नहीं है, वो आप स्टैटिस्टिकली करेक्ट नहीं मान सकते हो, क्योंकि यू आर यूजिंग योर ओन लॉजिक। किसी केसेस में जहां रिसर्चर्स को अपना डिफरेंट काइंड का आउटकम चाहिए, आप कर भी सकते हो, ऐसा नहीं कि पूरा इलॉजिकल है, तो 2 की जगह 3 भी कर सकते हो। But we will go with the 2 clusters because SPSS has given us 2 various clusters, right? Parameters क्या थे हमारे, 1 2 3 4 5, सॉरी 6 हो गए, 5। इन 5 वेरिएबल्स के लिए हमने टेस्ट किया था। इन 5 वेरिएबल्स के हमने 384 लोगों का ग्रुपिंग किया। तो ये बोलता है कि 384 में 2 ही ग्रुप क्रिएट होते हैं, 2 ही ग्रुप क्रिएट होते हैं
जो सिमिलर ओपिनियन रखते हैं। अब दो ग्रुप में पॉजिटिव वाले हो सकते हैं, निगेटिव वाले हो सकते हैं, राइट? या फिर ऐसा हो सकता है एक हाईली पॉजिटिव है, एक सिर्फ पॉजिटिव है, या ऐसा होता है हाईली निगेटिव है, सिर्फ निगेटिव है। कौन से दो ग्रुप हो रहे हैं वो हमको पता नहीं है परसेप्शन के बारे में, राइट? तो हमने क्या किया, इसको बोला दो ग्रुप निकालो, ये इटरेशन वगैरह ये सब अलग चीजें हैं, इसको कुछ करने का जरूरत नहीं है। एंड एनोवा टेबल निकाल के दिखाता हूँ, फिर सिग्निफिकेंस पता चल जाएगा। सिग्निफिकेंस क्या होता है मैंने आपको पहले एक बार बताया हुआ है कि सिग्निफिकेंस वैल्यू एंड कॉन्फिडेंस वैल्यू एंड सिग्निफिकेंट वैल्यू क्या होता है, राइट? अगर हम अभी हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो दो क्लस्टर फॉर्म हो रहे हैं वो दो क्लस्टर में, अलग अलग क्लस्टर में 384 में से कितने लोग हैं, उसका क्लासिफिकेशन हमको देखना है। तो हम इसको ओके कर देंगे, ये हमको आउटपुट दे देगा। अब देखो यहाँ पे चेक करो, क्लस्टर 1 और क्लस्टर 2 में, क्लस्टर 1 और क्लस्टर 2 में पैरामीटर 1, क्या पैरामीटर 1, कोविड-19 वैक्सीन इज हाईली इफेक्टिव, ऐसा मानने वाले जो रिस्पॉन्स हमने 1 to 5 पे लिया था उसमें दो क्लस्टर फॉर्म होता है। एक क्लस्टर में मैक्सिमम लोग हैं जो 2 के आसपास उसका आंसर कर रहे हैं। 2 के आसपास मतलब क्या, ये इधर क्या है, 2 क्या है, डिसएग्री, राइट? और एक क्लस्टर ऐसा है जो 5 में करता है, जो 5 के आसपास जाता है। तो ग्रुपिज्म ऑफ, एक सेकेंड इसको क्लोज करो। So groupism of this particular variable for 384 responses can be done in two ways. एक 2 के पास एक ग्रुप है जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स कर रहा है, और एक 5 के पास ग्रुप है जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स कर रहा है। सो 1, 3 एंड 4 ऐसे ऑप्शंस दिए गए हैं आपने इस पैरामीटर के लिए जिसपे ज्यादा ग्रुपिंग नहीं हो रहा है। तो मैं आपको ये बताता हूं कि 2 के इसमें कितने लोग दे रहे हैं, 5 के इसमें कितने दे रहे हैं। तो आप चेक करो, यहाँ पे क्लस्टर 1 में 137 लोग हैं, क्लस्टर 1 में 137 लोग हैं, क्लस्टर 2 में 247 लोग हैं, टोटल मिला के होता है 384 लोग, राइट? सो तो क्लस्टर 2 में 247 लोग ऐसे हैं जो 5 के आसपास रिस्पॉन्स कर रहे हैं फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। अब आपको टेक्निकली अगर आप इसको इलेबरेट करोगे, थियोरेटिकल में लिखने का कोशिश करोगे, तो इट विल बी लाइक आउट ऑफ 384 responses, 274 responses are saying that, are strongly agreeing that the COVID-19 vaccine is highly effective. इस तरीके का उसका theoretical outcome लिखा जा सकता है, right? So it is telling you about cluster में कौन सा, और यहाँ पे फर्स्ट क्लस्टर में 5 को रिस्पॉन्स दे रहे हैं, 1 को दे रहे हैं, फिर 1 को दे रहे हैं, 5 को 3 को दे रहे हैं। इसके बारे में बहुत ज्यादा लोग न्यूट्रल है, 3 न्यूट्रल है हमारा स्केल पे देखा जाएगा तो, राइट? कोविड-19 वैक्सीनेशन इज ऑफर्ड बाय ट्रस्टवर्दी कंपनी, तो न्यूट्रल है लोग, दे डोंट ट्रस्ट ऑन द कंपनीज। और सेकंड क्लस्टर में 1 है जो स्ट्रांगली डिसएग्री है कि कंपनी ट्रस्टवर्दी नहीं है। तो एंड दिस इज अबाउट फॉर्मेशन ऑफ क्लस्टर्स एंड आइडेंटिफाइंग in which cluster how many of respondents are there in each cluster, right? How many of respondents are there in each cluster? पहले क्लस्टर में कितने रिस्पॉन्डेंट्स है, दूसरे क्लस्टर में कितने रिस्पॉन्स। अब एनोवा वैल्यू की अगर बात करते हो तो दिस इज इनसिग्निफिकेंट एनोवा वैल्यू, राइट? दिस इज इनसिग्निफिकेंट एनोवा वैल्यू, इट मींस देयर आर साइड इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। ये एक ऐसा पैरामीटर है जिसके लिए जो क्लस्टरिंग फॉर्म हुई है वो क्लस्टरिंग वैलिड क्लस्टरिंग नहीं है, दिस इज नॉट रेप्लिकेटिंग इन द रिस्पॉन्सेस, राइट? ये दिस इज नॉट रेप्लिकेटिंग इन योर पॉपुलेशन। सो एक पैरामीटर है जिसके लिए आपका एनोवा सिग्निफिकेंट नहीं आ रहा है। या एक्चुअली दिस इज नॉट देयर इन योर सिलेबस, आपको सिर्फ इतना आइडेंटिफाई करना है, आपको ये एक टेबल समझना है और ये एक टेबल समझना है। इस टेबल में क्या है, 2 क्लस्टर्स हैं, 5 पैरामीटर्स हैं। फॉर दिस पैरामीटर first cluster people are responding near 2 and second cluster people are responding near 5, और वो कितने हैं उसका फर्स्ट का मीन कितना है, सॉरी वो नंबर कितना है, फर्स्ट क्लस्टर का 137 है, सेकंड क्लस्टर का 247 है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? कुछ समझ में आ रहा है?
Yes. डिफिकल्ट हो रहा है? डिफिकल्ट तो होगा गाइस, इसके बेसिक समझने पड़ेंगे। आई थिंक आज हम रुकते हैं यहीं पे, आप समझने का कोशिश करो। मैं ये SPSS का जो डेटा सेट है ना, ये SPSS का डेटा सेट में आपका जो मार्केटिंग रिसर्च का फोल्डर बनाया है मैंने गूगल ड्राइव पे, वो फोल्डर में अपलोड कर देता हूँ, आप वहां से ले लो, इसको टेस्ट रन करके देखो। I don't know if anyone of you have downloaded the software or no. Sir, downloaded, but there is option. Option for what? Sir, is activate your subscription or trial and activate with authorization code with license or launch ट्रायल करो ना, license. ट्रायल वर्जन ले लो ना, ट्रायल करो ना। 15 Login दिन with मिलेगा आपको। IBM ID, sir, it is written. हाँ, Login with IBM ID. ट्रायल वर्जन मिलता है 15 दिन का, कैसे मिलता है वो देखो, मिल जाता है, मुझे पता है, मेरे पास था कुछ दिन, Okay. राइट? सो आज रुकते हैं यहीं पे, एंड दिस इज ऑल अबाउट क्लस्टर एनालिसिस। एक्चुअली बहुत ऊपर से इंफॉर्मेशन बताया है, क्योंकि क्लस्टर एनालिसिस, एक मिनट, क्लस्टर एनालिसिस करना है नहीं करना है, ये आपको क्वेश्चनर बनाने से पहले सोचना पड़ता है, राइट? Which statistical test and which statistical relation you are looking from your data has to be decided by the time you are talking about your objectives, hypothesis and questionnaire. ये तब से शुरू करना पड़ता है। तो ये मैंने आपको बताया है, जब मैंने क्वेश्चनर बनाई थी तब मैंने बताया है, बट आप में से बहुत सारे लोग नहीं थे। सो वीडियोस में है, यूट्यूब में वीडियोस है, कुछ वीडियोस मेरे BRM के PGDM के लिए बनाए हुए, वो भी वीडियोस में आपको इसके बैकग्राउंड डिस्क्रिप्शंस मिल जाएंगे। बट अब 1.5 घंटे के 15-20 वीडियो देखने के लिए किसके पास गट्स है, वो इम्पोर्टेंट है। यस प्रियंका, बोलो। Sir, please share the PPTs. PPT शेयर कर देंगे, PPT का कोई बात नहीं, मैं अभी ड्राइव के अपलोड कर देता हूँ, और भी दूसरे बहुत सारे PPT। And please share the drive link also, sir. सॉरी, Drive link also. ड्राइव लिंक आपको दीप सर ने शेयर किया हुआ है। Thank you, sir. Sir, next class, will you please repeat that part again? विच पार्ट? So this cluster analysis, please, sir, थोड़ा tough हो रहा था। देखते हैं अभी कितना कर पाते हैं, आपका एग्जामिनेशन भी बहुत क्लोज है। रिपीट करने के लिए मैं ये रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, अगर आप चाहे तो वहां देख सकते हो, राइट? Sure, sir, sure. तो रिपीटेशन का फिलहाल तो इशू नहीं है, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है तो कोई टेंशन ही नहीं, राइट? सर वो ड्राइव लिंक शेयर नहीं किया है। मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड डे। बाय सर।